Hello students, how are you? My name is बीरबल शर्मा, लेक्चरर फिजिक्स PCCP रेजिडेंस कोटा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर 11 ऑफ लाइट। लेक्चर 11। Okay, now the topic is a deviation without dispersion and dispersion without deviation. Okay, we have two prisms. Number one is this one. The angle of this prism is A1, refractive index mu1. सेकंड प्रिज्म यहाँ रखता हूँ मैं, देखिए इट इज सेकंड प्रिज्म जस्ट अपोजिट, इसका बेस नीचे है, इसका ऊपर, इट इज A2, refractive index that's mu2. Okay, light falls on first prism, light falls on white light falls on first prism, then there will be deviation and dispersion by first prism and also deviation and dispersion by second prism, then deviation by first prism, that is delta 1 is equals to mu1 minus 1 into A, and that of by second prism that is delta 2 is equals to mu2 minus 1 into A1, it is A2, ये नंबर 1, ये नंबर 2। अच्छा, डिस्पर्सन भी होगा, एंगल ऑफ डिस्पर्सन बाई फर्स्ट प्रिज्म दैट इज थीटा 1 इज इक्वल्स टू, ये होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो म्यू वी माइनस म्यू आर दैट इज फर्स्ट प्रिज्म इंटू A1, it is clear, by second prism that is theta 2 will be equals to mu v for second prism minus mu r for second prism into angle A2. It is number third, it is number fourth. Is it clear? अब first topic है, number 1 is deviation without डिस्पर्सन नहीं होगा, डेविएशन तो होगा। हाउ वी विल फाइंड द इट इज डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन मीन्स डेविएशन इज जीरो, इट इज डेविएशन हो रहा है, दैट इज डेल्टा इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। क्लियर? दैट इज डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2। That is equals to delta without, that is mu1 minus 1 into A1 minus mu2 minus 1 into A2. It's the deviation without dispersion. No dispersion means theta 1 minus theta 2 will be 0. Theta 1 minus theta 2 will be 0. So we can put here theta 1 है mu, theta 1 is 1, mu v 1 minus mu r 1 into A1, that is equal to mu v 2 minus mu r 2 into A2. So we can find the A1 by A2, that equals to A1 by A2 mu v2 minus mu v1 divided by mu v2 mu r. It is mu v1 minus mu r 1
it must be the ratio for no dispersion. Okay, no dispersion. It is a condition for no dispersion. अब डिस्पर्सन नहीं होगा तो डेविएशन होगा, और डेविएशन क्या फिगर कैसे बनाऊंगा, देखिए ये ऐसे इट विल ब्रेक, अगर प्रिज्म नहीं है तो विल मूव इन दिस वे, ये रेड कलर, ये वायलेट कलर, जब यहाँ जाएगा देन इट विल बी ओके, और इट विल बैंड इन दिस वे. It is a net deviation, that's delta. The net deviation, the ratio must be A1 upon A2 is this one. For no deviation without dispersion, dispersion नहीं होगा, deviation हो रहा है, deviate हो रही रेज, ऐसे जा रही थी, it is deviation. ओके, सेकंड केस देखिए. सेकंड केस है डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन. विदाउट डेविएशन मीन्स डेविएशन नहीं हो रहा, डेल्टा 1 माइनस डेल्टा 2 मस्ट बी 0 और डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2, और डेल्टा 1 की वैल्यू है म्यू 1 माइनस 1 इंटू A1 दैट इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस 1 इंटू A2. सो व्हाट द वैल्यू ऑफ A1 बाई A2? A1 upon A2 is equals to mu 2 minus 1 upon mu 1 minus 1. It is the condition for no deviation. No deviation. Okay? डिस्पर्सन तो होगा बट विदाउट डेविएशन, नो डिस्पर्सन. जब डिस्पर्सन होगा तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन कितना होगा? That is theta will equal to theta 1 minus theta 2. Theta 1 and theta 2 are given. We can write theta 1. Theta 1 है this one. तो mu v 1 minus mu r 1 into A1 minus mu v 2 minus mu r 2 into A2. It will be the dispersion angle, angle of dispersion. Okay? It is the condition. ये second case है. इट द डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन. ऊपर था डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन. अब इसका फिगर कैसे बनाऊंगा, देखो इसका फिगर क्या होगा. ये प्रिज्म, ये द फर्स्ट प्रिज्म, इट्स A1, इट इज म्यू 1. सेकंड प्रिज्म यहां रखा हुआ है, इट इज A2 and mu 2. White light falls on it. White light. Okay, divided into how many parts? अगर नहीं है तो ये ऐसा जाएगा. It is again combined into 7 colors. Okay. Again, how many colors? 7 colors. It is red and violet. Seven colors. We can write it. They will be parallel. A red and violet colors. Delta will be how much? 0. Clear? डेल्टा इज 0 दिस वन. अब थर्ड कंडीशन आती है नो डिस्पर्सन नो डेविएशन. थर्ड इज नो डिस्पर्सन एंड नो डेविएशन. ओके, नो डिस्पर्सन नो डेविएशन. व्हाट विल हैपन? ये A1 इज इक्वल्स टू A2 एंड mu 1 is equals to how much? Mu 2. Then no dispersion. It will behave just like a slab. कह सकता हूँ recombination of white light. It is A1, it is A2, ये mu 1 and mu 2 white light ऐसे fall होगी. White
light. Okay, divided into how many parts? 7 parts. It becomes parallel. No dispersion, no deviation, it is white light. ये सीधा था. It's the condition A1 is equals to A2 and mu1 is equals to mu2. Dispersion without deviation and deviation without dispersion. अब लेते हैं scattering of light. Scattering of light. When the light falls very small particles, then diffuse reflection takes place. This phenomenon is known as scattering of light. When light falls on very small, tiny particles, then diffuse reflection, irregular reflection takes place. This phenomena is known as scattering of light. This phenomena is known as scattering of light. According to Rayleigh, the scattering of light depends, intensity of scattering of light depends on the wavelength of light. Wavelength पर depend करता है. According to Rayleigh, okay, according to Rayleigh, when the size of scattering particles is equal or less than the wavelength of light, okay, then intensity of scattered light will be directly proportional to, or we can say inversely proportional to, the force power or wavelength will be inversely proportional to fourth power of wavelength of light. अब ये जब भी पॉसिबल है when the size of the wavelength is approximately the wavelength of light or less than the wavelength of light, means intensity I is proportional to 1 upon lambda to the power. Okay, if size of scattering particles is more or greater, then they will scatter all colors equally. They will scatter all colors equally. अब इसका एक प्रूफ देख सकते हैं हम, क्या होगा? Tyndall effect. Do you know example of Tyndall effect? What is Tyndall effect? इसका एग्जाम्पल्स में, दैट इज टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट आपने देखा होगा, मैं बताता हूं. व्हेन ए रूम इज फिल्ड विद स्मोक, एंड सनलाइट इज फॉलिंग इन द रूम थ्रू ए होल, then the path of light becomes visible. एकदम रे की तरह दिखता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इन द रूम, ओके, filled with smoke,
स्मोक पार्टिकल्स। तो अगर किसी होल से लाइट आ रही है तो उसका पाथ कैसा होता है, विजिबल हो जाता है। ये ऐसे पार्टिकल दिखते हैं यहाँ पर, विजिबल पाथ। सेकंड एग्जांपल दे सकता हूँ, डू यू नो कैनोपी। जब डेंस फॉरेस्ट में मतलब ट्रीज ज़्यादा डेंस होते हैं तो सनलाइट बहुत कहीं कहीं से नीचे तक पहुँचती है। in dense forest the moisture means humidity will be more in air. When the light enters through the trees and reaches the ground, then the path of light becomes visible, because जो particles हैं, air particles, इन पर moisture है वो visible हो जाते हैं। then this path, this phenomena is known as Tyndall effect. अब देखिए effects of scattering, some applications, effects of scattering क्या क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू कलर ऑफ स्काई, फिनोमेना मतलब जो वी कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग, फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। डू यू नो that the intensity of scattered light, when particles are small, intensity of scattered light is inversely proportional to the fourth power of the wavelength. याद है ना, I is proportional to 1 upon lambda to the power 4, और lambda for violet is less than lambda for red and other colors. तो when white light falls, अब देखिए ये अर्थ, तो फर्स्ट है इसका ब्लू कलर ऑफ स्काई, क्यों दिखता है ब्लू कलर ऑफ स्काई। सपोज कीजिए हियर इज द अर्थ, ओके, ये आगे एटमॉस्फेयर है जो डेंस है, आगे लाइट होता जाएगा, लाइट एटमॉस्फेयर, क्लियर। अब ये तो कंफर्म है, ऊपर वाले पार्टिकलों में दे विल बी लाइटर एंड दे विल बी लेस इन साइज, तो उनका साइज वेवलेंथ के लेसर है। जब वाइट लाइट इस पर पड़ेगी तो क्या होगा, देखिए वाइट लाइट, इस पर वाइट लाइट पड़ रही है, ओके, चलिए यहाँ से वाइट लाइट पड़ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पड़ेगी इन पार्टिकल्स पे, देन स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, तो सबसे पहले ब्लू कलर होगा, वो स्प्रेड हो जाएगा। कौन सा कलर, VIB, ये कलर ज़्यादा स्कैटर होंगे, यहीं ये सनलाइट, VIB ये कलर, इट मीन्स ये मिलके बनता है ब्लू। इसका मतलब इसके चारों तरफ का एटमॉस्फेयर मुझे कैसे दिखेगा, ब्लू दिखेगा। अगेन व्हेन लाइट सुबह जब एंटर करती है या लाइट एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, देन ऑन द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर देर आर स्मॉल पार्टिकल्स, स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, तो सब जगह स्कैटर होता है VIB, और VIB मिलके बनते हैं दैट इज ब्लू। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है दैट बिकम्स विजिबल, और कैसा दिखेगा मुझे, ब्लूइश दिखेगा, और ब्लू कलर ऑफ स्काई, इट इज द रीजन। सेकेंड पॉइंट आता है द सन, कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, द कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट कैसा दिखता है मुझे, अब सोच के देखिए जरा, ये अर्थ, इसके यार एटमॉस्फेयर, यहाँ लाइटर पार्टिकल्स होंगे इसके, इज द ओरिजिन, सन यहाँ था, इधर देखिए जब ये लाइट यहाँ पहुँचेगी तो सबसे पहले इन पार्टिकल्स को पड़ेगी, स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, तो यहीं फैल जाएगा कौन सा कलर, VIB, दैट्स कलर ब्लू, ये कलर्स यहीं स्प्रेड हो जाएंगे। अब रेस्ट कलर बचे मेरे पास, सबसे पहले कौन सा पहुंचेगा मेरे पास, सबसे पहले रेड, पहले रेड पहुंचेगा। तो जैसे ही मतलब सन मुझे दिखाई देगा यहाँ पे, यहाँ दिखाई देगा ये सन, तो सन का कलर मुझे कैसे दिखाई देगा, रेडिश। थोड़ी देर बाद येलो भी पहुंच जाएगा, तो प्लस वाई रेडिश येलो, रेडिश येलो, और इसके बाद धीरे धीरे और भी कलर पहुंचेंगे, दैट बिकम्स वाइट।
So at the time of sunrise, the color of sun is red plus yellow, या कह सकता हूँ ऑरेंज या VIB GYOR, तो रेड पहुंचा, फिर ऑरेंज पहुंचा, फिर येलो पहुंचा, तो रेडिश येलो हो जाएगा ये ऑरेंज। तो जिस मुझे दिखेगा लाइट तो यहाँ से आ रही है, ये जो कलर दिखेगा रेडिश दिखेगा, थोड़ी देर बाद ऑरेंज कलर, ये येलो कलर्स भी पहुंचेंगे, तो रेडिश येलो होगा, उसके बाद सारे कलर्स पहुंचेंगे, देट बिकम्स वाइट। सेम थिंग एट द टाइम ऑफ सनसेट, जब सनसेट होगा हॉरिजन से नीचे जाएगा, ओके, तो यहाँ पर जो लाइट आ रही है, सन से लाइट आ रही होगी, स्कैटरिंग टेक्स प्लेस, तो ब्लूइश दिखेगा स्काई, और साथ में जो कलर बचे हैं वो मेरे पास आई पर पहुँचेंगे, तो सनसेट के टाइम पे भी मुझे यही दिखाई देगा, रेडिश एंड रेडिश येलो या येलोइश रेड, ये कलर। तो एट द टाइम ऑफ सनराइज सनसेट द कलर ऑफ सन विल बी रेडिश येलो, ओके। अच्छा, ये तो ठीक है। देन अगला पॉइंट देखिए, कलर ऑफ वाइट कलर ऑफ स्काई, सॉरी क्लाउड्स। अब क्लाउड्स वी नो, इन क्लाउड्स देयर आर स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स हैं। द साइज ऑफ ड्रॉपलेट्स इज मच मोर इन कंपेरिजन टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो जब लाइट क्लाउड्स पर पड़ेगी तो दे विल स्कैटर ऑल द लाइट इक्वली, ऑल कलर्स इक्वली, तो वो सारे कलर वहीं फैल जाएंगे। तो वो कलर कैसा दिखेगा मुझे, क्लाउड्स वाइट दिखते हैं, वाइट दिखेंगे अब, बिकॉज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन क्लाउड्स, दैट इज ड्रॉपलेट्स and other particles, it is more in comparison to wavelength, so all color will scattered equally, they becomes white, they visible white. A practical verification of scattering of light हम लैब में भी कर सकते हैं। कैसे देखेगा, सबसे पहले देखिए, आई टेक ए बीकर, ये बीकर लिया मैंने, और इसमें वाटर अप्रोक्सीमेट 2 लीटर प्लस दैट इज सोडियम थायो सल्फेट अप्रोक्सीमेट 200 ग्राम प्लस 2 or 3 or 4 drops concentrate H2SO4, ये मिक्स कर दूंगा इसमें, ओके। इट इज बीकर फिल्ड विद वाटर, ये वाटर 2 लीटर है प्लस सोडियम थायोसल्फेट और प्लस 3 or 4 ड्रॉप्स ऑफ कंसनट्रेट H2SO4। इससे क्या होगा, द सल्फर विल प्रेसिपिटेट, और सल्फर का जो पार्टिकल होंगे वो बहुत माइन्यूट, बहुत छोटे होंगे, टिनी पार्टिकल्स, ओके। अब मैं इस पर लाइट फॉल करता हूं, हियर इज सोर्स ऑफ लाइट, वाइट लाइट, ओके। तो लाइट यहां से जा रही होगी। अब इक्वली पड़े तो मैं यहां रख देता हूं एक कॉन्वेक्स लेंस, इट इज फोकल लेंथ f, व्हाट विल हैपन, रेज यहां से जाएंगी, ओके, ऐसे जा रही होगी लाइट, दे बिकम्स पैरेलल, ये लाइट जा रही होगी इधर, ये भी इधर, दे बिकम्स पैरेलल लाइट जा रही होगी, क्लियर। यहां रखता हूं एक डिस्क, जो बीच में सेंटर पर मैंने होल कर दिया है, इसका इतना बड़ा होल है ये वाला, तो ये लाइट पास होगी यहां से, ये भी लाइट पास होगी, ये भी लाइट पास होगी, लेकिन ये नहीं होगी पास, ये रुक जाएगी, इट इज होल ए डिस्क, क्लियर। तो ये लाइट तो यहीं रुक जाएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, देखिए आगे जाएगी, तो लाइट केवल ये निकल रही है आगे, ओके। अब मैं यहाँ एक और लेंस रख दूंगा, कॉन्वेक्स लेंस,
और इसकी फोकल लेंथ पे है एक स्क्रीन ऐसा, तो लाइट यहाँ से जाएगी, इट विल फोकस एट दिस पॉइंट। अब कैसे फोकस करना है मुझे, स्पॉट बना सकता हूँ मैं, ओके। अब देखिए, व्हेन व्हाइट लाइट फॉल्स ऑन ए लेंस द रेज बिकम्स पैरेलल, दे विल फॉल ऑन दिस वन। तो इनिशियली द थ्री साइड्स, इधर वाली साइड, इधर वाली साइड, दे बिकम्स ब्लूइश, ये मुझे वीकर ब्लूइश दिखेगा थ्री साइड से। फोर्थ साइड बच गई, वो आगे जाएगी लाइट, तो यहाँ जो स्पॉट दिखेगा मुझे रेडिश येलो दिखेगा। क्यों हुआ ऐसा? व्हाइट लाइट फॉल कर रही थी, उसमें कितने कलर्स हैं? VIB GYOR। अब ये कलर तो यही स्प्रेड हो गए, स्कैटरिंग हुई ड्यू टू स्कैटरिंग फ्रॉम द सल्फर पार्टिकल्स। ये स्कैटरिंग तीन साइड में, जैसे वीकर हो रखा था, इधर इधर इधर, थ्री साइड से ब्लूइश होगा। अब जो बच गए मेरे कलर ये, तो ये कलर्स वहाँ पहुँचेंगे। जब ये कलर्स पहुँचेंगे, ये रेडिश R+ ऑरेंज या रेडिश येलो, और इधर से थ्री साइड से, फ्रॉम थ्री साइड्स इट्स ब्लू, मीन्स स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। अगर मैं इसमें सोडियम थायोसल्फेट ये नहीं बनाता हूँ, क्लियर वाटर है, देन द स्पॉट विल बी वाइट। तो ये क्लियर कर रहा है कि ड्यू टू द सल्फर पार्टिकल्स द स्कैटरिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस, ओके। नाउ द रेनबो देखा है कभी? रेनबो, ओके, इट्स द फिनोमेना ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन होता है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस व्हेन लाइट फॉल्स आफ्टर मीन्स रेनी सीजन। जो हैवी ड्रॉप्स हैं दे विल फॉल एंड द लाइटर ड्रॉप्स ऑफ वाटर दे फ्लोट इन एयर, और इस पर सनलाइट पड़ती है। तो देखिए, जैसे ये ड्रॉप थी, इस पर सनलाइट पड़ेगी, ऐसे सनलाइट पड़ रही है, तो व्हाट विल हैपन, इट इज डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स। ये 7 कलर में डिवाइड होगा, इट इज रेड, इट इज वायलेट। अब क्या होगा, हियर इज रेड एंड वायलेट, क्लियर, इट इज सनलाइट। तो द लाइट ड्रॉप्स दे फ्लोट इन एयर, okay. When sunlight falls on drops, then dispersion takes place, due to which the light split into on 7 colors, okay. क्या होगा देखिए, these are the drops, मैंने ये drops लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये 4 ड्रॉप लिए हैं मैंने, फ्लोटिंग करती हुई गिर रही हैं, फ्लोट हैं, बहुत लाइट ड्रॉप्स हैं। चलिए, यहाँ से आ रही है सनलाइट, सनलाइट इधर से आ रही है, देखिए, इट इज सनलाइट, ओके। ये था सनलाइट फ्रॉम सन, ओके। सन से लाइट आ रही है ये वाली। जब लाइट इस पर फॉल होती है तो व्हाट विल हैपन, यहाँ फॉल होगी, इधर आएगी, यहाँ हो रहा है रिफ्रैक्शन, यहाँ TIR होगा, ओके। ये डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स, ऐसे ये मेरी आई पर पहुँचेगा, मान लीजिए ये कलर इधर निकल गया, ऐसे भी ये वाला, ये कलर मेरी आई पर पहुँचेगा, ये ऑब्जर्वर, क्लियर। इट इज नोन एज प्राइमरी रेनबो। अब देखिए, थिंक अबाउट दिस, A, B, C एंड D ड्रॉप्स, यहाँ लाइट आ रही है, ऐसे आएगी, हियर इज, ये कलर मेरी पारी पर पहुँचेगा, और यहाँ भी देख रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस। फर्स्ट A और B में 2 बार TIR हो रहा है, 2 टाइम TIR, जबकि यहाँ हो रहा है ओनली सिंगल टाइम TIR। ये हो रहा है 1 and 2 टाइम TIR, यहाँ हो रहा है ओनली 1 टाइम TIR। इट इज सेकेंडरी रेनबो, ओके। तो अब देखिए कलर्स,
ये जो कलर होता है ये वायलेट होता है, ये कलर भी होता है, ये वायलेट होता है, ये वाला कलर है रेड और ये वाला भी कलर है रेड। याद रखिए ये रेड कलर है और ये वाला भी रेड है, ओके, और ये वाला है वायलेट कलर। तो याद रखिए इनके कलर का जो सीक्वेंस है वो जस्ट अपोजिट है। प्राइमरी रेनबो में, इट इज प्राइमरी में नीचे वाला कलर वायलेट, ऊपर वाला होता है रेड, लेकिन सेकेंडरी रेनबो में ऊपर वाला वायलेट है, नीचे वाला दैट इज रेड कलर। ये एंगल होता है 40 डिग्री, it is 42 degree, it is 50 degree, it is 53 degree, ओके। दिस द ये ऑब्जर्वर की आई पर फॉल होता है। अब देखिए देर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ मेनी रेनबोज आर फॉर्म एट ए टाइम, दैट इज 2, ओके। कैसे बनते हैं देखिए, अब मैं इसको रब करता हूँ, कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ इसके। हाउ मेनी रेनबोज आर फॉर्म्ड एट ए टाइम। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1, हाउ मैनी रेनबोज फॉर्म्स एट ए टाइम। तो आंसर इसका होगा 2 रेनबोज फॉर्म्स साइमल्टेनियसली, एक साथ होते हैं 2, ओके, एट ए टाइम। 1 इज प्राइमरी and second is secondary rainbow. It's the answer. Clear? चलिए क्वेश्चन 2 लेते हैं। How many phenomena takes place during rainbow formation? How many phenomena takes place ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन? इसका आंसर है, आंसर देखिए इसका, नंबर 1 इज रिफ्रैक्शन, नंबर 2 इज डिस्पर्सन और थर्ड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, TIR। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, इंटेंसिटी ऑफ विच रेनबो विल बी मोर, इंटेंसिटी ऑफ विच रेनबो विल बी मोर। तो उसका आंसर है इंटेंसिटी ऑफ प्राइमरी रेनबो will be more. What is the reason? Because in secondary rainbow there are 2 times TIR takes place, so some intensity will reduce. Sometimes secondary rainbow is so blurred that we cannot see it. और it is due to intensity कम क्यों होती है? It is 2 times TIR takes place, so some light is absorbed on it. नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन 4 देखिए जरा। ओके, ड्यूरिंग रेनबो फॉर्मेशन dispersion takes place. Number 1, when light enters the drop, Number 2, बी में देखिए,
इनसाइड ड्रॉप, और सी है व्हेन लाइट लीव द ड्रॉप। कब होता है? अब इसका आंसर देखिए, इट इज द ड्रॉप, लाइट यहां से फॉल होगी, ऐसे आएगी, इट इज डिवाइडेड इनटू, इस पॉइंट पे डिस्पर्सन है ये रेड और इट इज वायलेट। अब इसके बाद दिस फिनोमेना। तो करेक्ट आंसर इज व्हेन लाइट एंटर्स द ड्रॉप, इट इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन है, वी वांट, फिफ्थ क्वेश्चन, वी वांट टू सी more circular part of rainbow. We must move. कहाँ मूव करना चाहिए? A on a hill, हिल पर जाना चाहिए। ओके, नाउ ऑन फ्लैट सरफेस, ओके, और वी कैन से नंबर थर्ड, एनीवेयर, कहीं भी हो। तो करेक्ट आंसर इज वी मस्ट मूव ऑन हिल, कुछ हाइट पर जाएंगे तो मुझे सर्कुलर पार्ट थोड़ा ज़्यादा दिखेगा। एक्चुअली क्या होता है, देखिए आपने देखा एक कोन बनता है, ये कोन पर होती है आई, तो ये पोर्शन दिखता है मुझे, ये वाला पोर्शन कोन का, ये रेनबो 7 कलर्स ऐसे दिखते हैं मुझे ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसी का, सिक्स्थ, रेनबो इज इन इवनिंग, देन सन विल बी, कहाँ होगा? इवनिंग में देख रहा है तो सन किस डायरेक्शन में होगा? इफ रेनबो इज इन मॉर्निंग, देन सन विल बी, या ऐसे लिखिए, सन इवनिंग में मिल रहा है मुझे, दिख रहा है रेनबो, तो किस डायरेक्शन में होगा? इफ रेनबो इज इन इवनिंग, देन इट विल बी in which direction? If in morning, then it will be also in which direction? तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर, जब मुझे रेनबो दिख रहा है तो सन मस्ट बी ऑन माई बैक, सन मस्ट बी ऑन माई, टू सी रेनबो, sun must be in the back of observer. For example, in morning sun is towards east, so rainbow will be towards west, वेस्ट में दिखेगा ना भाई। मॉर्निंग में सन तो ईस्ट में होगा और सन मेरे बैक पे होना चाहिए, तो इधर क्या आएगा? ईस्ट आएगा। ओके, इन इवनिंग रेनबो है तो रेनबो विल बी टुवार्ड्स, इवनिंग में सन वेस्ट में होता है, इधर वेस्ट है तो इधर सन इधर होगा तो मुझे ईस्ट में दिखेगा, टुवार्ड्स east. These are the answers, most important answers related to it. Okay, now next, the colors of the object. Colors of the object, ज़्यादा डिटेल नहीं. What are the colors of the object?
color object means when object is seen white light of object. Color object means of object means, okay, when it is seen in white light. So what are the colors? There are how many colors? Do you know? V, I, B, G, Y, O, or there are, what are the primary colors? First of all, primary color. 3 colors out of these 7 colors, 3, that is V, G and R. B, G and R are primary colors. ओके, ये प्राइमरी कलर्स हैं. अगर इनको सेम रेशियो में मिला दें, ओके, फॉर एग्जांपल देखिए वी आई बी, जी वाई, ओ आर, अगर इनको सेम रेशियो मिक्स करूं, इट इज ब्लू, इट इज येलो, दैट इज ग्रीन, और ये वाला है रेड. दीज आर द प्राइमरी कलर्स. इफ वी ऐड दीज प्राइमरी कलर्स, blue, green and red, then they gives white light. If we add V, G and R in same ratio, then they gives white light. मतलब ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की, रेड कलर की लाइट को मिक्स कर दूं सेम रेशियो में, दे गिव्स वाइट लाइट. अब नाउ सेकेंडरी कलर्स. नाउ व्हाट सेकेंडरी कलर्स, क्या होते हैं सेकेंडरी कलर्स? और कंपोजिट कलर्स. देखिए द कलर, अगर किसी कलर में हम एक प्राइमरी कलर मिक्स कर दें, इट विल गिव्स वाइट, देन दैट कलर विल बी सेकेंडरी कलर. The color of light in which any primary color is added, then it gives white light. Then that color is known as secondary color, known as secondary color. Okay, for example, देखिए ये वाला है मेरा रेड कलर. कौन सा है ये? रेड. ये वाला है बी, इट इज आर, इट इज बी, और ये वाला है ओके. थोड़ा छोटा बनाऊं इसको मैं, जी. ओके, अब थिंक अबाउट दिस. ये बीच वाला पोर्शन है, ये तीनों कलर इक्वल रेशियो मिल गए, ये तो वाइट होगा. ये है, ये 2 कलर मिल रहे हैं यहां पर, इट इज मैजेंटा and R and B gives magenta. ओके, यहां भी 2 कलर मिल रहे हैं, इट इज सियान, और यहां भी 2 मिल रहे हैं, इट इज येलो, और बीच वाला ये पोर्शन है, इट इक्वली मिल रहे हैं, इट इज वाइट. मैं इसको एक फॉर्म और बना सकता हूं, जैसे ये देखिए, ये ट्राइंगल बन रहा है. ओके, ये वाला कलर है रेड, आर, red color. Okay, it is blue color, it is G. तो इन दोनों को मिक्स करूंगा, इट इज मैजेंटा. इन दोनों को मिक्स करूंगा, इट इज सियान, और इट इज ओके. देन MCY is known as secondary color. Here
एम सी वाई आर सेकेंडरी कलर. Clear? Secondary colors. Now what are the complementary colors? Complementary colors. Complementary colors होते हैं, श्यान में कोई कलर मिला दूं या वाइट लाइट में से कोई कलर निकाल दूं तो सेकेंडरी कलर बच जाए. सेकेंडरी कलर, दिस पेयर, दैट इज श्यान. श्यान के साथ कौन सा कलर मिलाऊं? इट बिकम्स वाई, जैसे येलो वी, that is complementary. Complementary colors, if secondary colors में एक primary colors मिलाऊं या white light में से एक secondary color निकाल दूं मैं, complementary colors, the pair of, अब ये देखिए जरा, ये कलर था रेड, ये था बी, ये था जी, याद है क्या था? मैजेंटा, ये वाला था श्यान और ये वाला था येलो. मैजेंटा इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आर एंड बी, देन दिस पेयर मैजेंटा, दिस मैजेंटा एंड ग्रीन, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. हियर इज श्यान and cyan is a combination of E and G plus R and yellow is a combination of R and G, that is blue. These are the pairs or they are known as complementary colors. Okay, now think about the color of object. Color of object में when white light falls on object, then some part are absorbed by the object and rest is reflected. This reflected part reaches on our eye. This reflected part reaches on our eye. Okay, reflected part reaches on our eye. Is it clear? जो पार्ट हमारी आई पर पहुंचा है वही तो विजिबल होगा. विद द हेल्प ऑफ दिस कैन, सो वी कैन सी, ड्यू टू विच वी कैन सी द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट. अब देखिए क्या होगा. फॉर एग्जाम्पल रोज, वाई रोज appears red when sunlight falls on rose. Sunlight falls on rose means sunlight has 7 colors. Then this is the tendency of rose that it reflect only red color and absorb all the rest colors. VIB out of 7 colors, VIB G by R. तो जब ये रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है तो मेरी आई पे रेड पहुंचेगा, इसलिए रेड मुझे रोज जो है रेड दिखता है. क्लियर? थिंक अबाउट दिस वन. फिर से रेड, रोज जो है मुझे रेड क्यों दिखता है? रेड दिखने का मतलब है इट इज सीन इन व्हाइट लाइट. या व्हाइट लाइट में देख रहा हूं तो व्हाइट लाइट हैज 7 कलर्स. तो द टेंडेंसी ऑफ द रोज इज इट एब्जॉर्ब्स VIBGYO, सारे कलर्स को एब्जॉर्ब करता है. ओनली इट रिफ्लेक्ट द रेड कलर. और रेड कलर जब मेरी आई पे पहुंचेगा तो मुझे इट बिकम्स विजिबल रेड. अच्छा, आप इसकी एक और एग्जांपल देखिए. इफ रेड कलर इज सीन इन येलो लाइट, सोडियम लाइट में देखूँ तो व्हाट विल हैपन, कैसा कलर दिखेगा? फिर एग्जांपल अगेन, दैट इज रेड कलर की. व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ रेड रोज? इट रिफ्लेक्ट्स ओनली रेड कलर, बाकी सारे को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. इज इट क्लियर? अब मैंने वाइट जब येलो लाइट में देख रहा हूं तो इसमें फॉल ही येलो लाइट हो रही है, इसको तो एब्जॉर्ब करेगा. इट विल रिफ्लेक्ट नथिंग,
मेरी आई पर लाइट जाएगी नहीं, इट अपीयर्स ब्लैक। फिर से जब रेड रोज को मैं येलो लाइट में देखूंगा तो मुझे ब्लैक अपीयर होगा। व्हाट द रीजन? क्योंकि रेड रोज की टेंडेंसी है कि ये केवल वाइट लाइट में से रेड को ही रिफ्लेक्ट करता है, बाकी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अब मैं येलो लाइट से फॉल कर रहा हूं तो येलो को तो ये एब्जॉर्ब कर लेगा और रिफ्लेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट नथिंग, तो मेरी आई पे लाइट पहुंचेगी नहीं, इट बिकम्स ब्लैक। ब्लैक इज नॉट ए कलर, इट द एब्सेंस ऑफ लाइट, एब्सेंस ऑफ लाइट। ओके, चलिए now on next one we will start I.